आवाज आ रही है सभी को? हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आ रही आवाज। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Okay, so in the previous lecture we have discussed the transmission media. Yes, इसमें हमने guided unguided media पढ़ा था and we have discussed what is transmission media. उसके बाद उसमें हम लोगों ने classification को discuss किया. Then we have discussed coaxial cable, ठीक है, twisted pair cable that is belong to the guided media. Then optical fiber cable. फिर अनगाइडेड में हम लोगों ने रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारा चीजें पढ़ी थी, ठीक है। ये सारा कुछ जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था that was in the category of the transmission media. Yeah. Now यस in सर। this okay, so now in today's lecture we will discuss uh, framing and flow control, and if we got the some time, so we will discuss error control also. Clear? Error detection that belong to exactly the data link control protocol. Exactly that belong to the data link control protocol. Clear? So before going to the detail of that framing and flow control, we just need, उसमें हम लोग काफी चीजें पढ़ेंगे। आपने कई सारे मेथड्स पढ़े होंगे कंट्रोल करने के लिए, जैसे गो बैक इन ARQ, ठीक है, सेलेक्टिव रिपीट, विंडो प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी इसको स्टडी किया हुआ है। This is just overview, or you can say this revision of that. Okay, so start with the data link protocol, basically data link layer. So you all know in OSI reference model, the second layer is the data link layer. Clear? First one is the physical layer, second is the data link layer, third one is the network layer. तो basically जो data link layer है वो physical and network layer के बीच में exist कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये सर्विसेज लेता है कहाँ से? फ्रॉम द फिजिकल लेयर। जो इसके ऊपर लेयर है दैट इज फिजिकल लेयर, वहां से सर्विसेज लेता है एंड डिलीवर द सर्विसेज और प्रोवाइड द सर्विसेज टू द नेटवर्क लेयर जो इसके नीचे है, ठीक है। तो ये ऊपर से सर्विस लेगा फिजिकल लेयर से और नेटवर्क लेयर को डिलीवर करता है। दिस इज द OSI. In view of OSI model, we can say it takes the services from the physical layer and deliver the or provide the services to the network layer that belong to this just bottom of that. Yeah, so सबसे मेन चीज क्या है? deals with the transmission of signal over the transmission medium, ठीक है। So the data link layer plays a very important role to achieve reliable, efficient communication between two adjacent machines. Clear? So data link layer basically जो दो एडजेसेंट मशीन्स हैं उनमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें रिलायबल कम्युनिकेशन अचीव करने के लिए एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन हो दोनों के बीच में, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। दिस लेयर बेसिकली डील्स विद फ्रेम फॉर्मेशन, जो हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। फ्रेम को फॉर्म करना, फ्लो को कंट्रोल करना एंड एरर को कंट्रोल करना, क्लियर, एंड एड्रेसिंग एंड लिंक मैनेजमेंट, ये सब इसी का पार्ट है, ठीक है। सो इट डील्स विद द फ्रेम फॉर्मेशन, flow control, error control, then addressing and link management. So so अभी हम इसमें डायग्राम भी देखेंगे इसमें, क्लियर। So its position is in between network layer and physical layer, क्लियर, जो कि मैंने आपको बताया ही है। So conceptually इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। Data link layer is oftenly divided into two sub layers. पहला है आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जिसको हम LLC बोलते हैं, दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल दैट इज MAC, ठीक है। बेसिकली दो पार्ट में हम इसको कैटेगराइज करते हैं, LLC एंड MAC, ठीक है, दैट इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल।
मोस्ट ऑफ द टाइम ये फुल फॉर्म आपसे पूछी भी जाती है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में। सो LLC क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग, ये बेसिकली IEEE 802.2 स्टैंडर्ड में एग्जिस्ट करता है, और मैक जो होता है वो IEEE 802.3 स्टैंडर्ड पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो LLC है, दिस सब लेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर identifying network layer protocols and then encapsulating means data to be transmitted, जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको encapsulate करेगा, them when they are about to be transmitted onto the network, or decapsulate them when it receives a packet from the network and pass it onto the layer above it. Clear? So encapsulation करेगा जब वो डेटा को टेक करेगा अपर लेयर से, और जब उसको डिलीवर कर रहा होगा नेटवर्क लेयर को, देन डीकैप्सुलेशन विल बी देयर। ठीक है, so an LLC header tells that data layer want to do with a packet once a frame is received. Clear? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक हमारे पास होस्ट है, कंप्यूटर है, जो एक फ्रेम को रिसीव करेगा या करता है, is destined for the IP protocol at the network layer. So the LLC can also provide flow control and sequencing of control bits. Clear? Now, second one is the media access control, that having the IEEE 802.3 standard. This defines how packets are placed on the media cable. ठीक है, ये बताता है कि कैसे हम पैकेट्स को मीडिया केबल, मीडिया पे या किसी पे ट्रांसमिट कर सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो कंटेंशन मीडिया लाइक ईथरनेट access is first come first served across anywhere that shares the same bandwidth. Clear? some design issues भी हैं इसमें डेटा लिंक लेयर में, जैसे अगर हम पहले डिजाइन इशू की बात करें तो सर्विस प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर, दिस वाज द फर्स्ट डिजाइन इशू, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्क लेयर को। ठीक है, सेकेंड इज द फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, जो भी फ्रेम है उसको सिंक्रोनाइज करना। ठीक है, जो सोर्स मशीन है जो भी डेटा सेंड कर रहा है ब्लॉक्स में, उसी को हम फ्रेम कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ ईच फ्रेम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द डेस्टिनेशन मशीन। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है, जब सिंक्रोनाइजेशन होगा तो सेंडर और रिसीवर के बीच में तो फ्रेम आपका प्रॉपरली रिसीव होगा। ठीक है, अगर कोई अनसिंक्रोनाइज, ये एक डिजाइन इशू है, जब भी हम डेटा लिंक लेयर को डिजाइन करते हैं, देन we are facing some issue like frame synchronization between sender and receiver. Then we have flow control. Flow control में क्या होता है कि आप सभी को पता है, flow control relates with the frame that is transmitted. Clear? जो भी हमारा फ्रेम है या डेटा है जो ट्रांसमिट हो रहा है, उसके फ्लो को कंट्रोल करना। क्लियर? दैट इज द अनदर कैटेगरी ऑफ दिस। ठीक है, दैट इज द मेजर इशू। So the source machine must not send data or frames at a rate faster than the destination machine, which it accept. Clear? सबसे बड़ी बात है कि जो भी डेटा सेंड हो रहा है, अगर वो फास्टर रेट से सेंड होने लगेगा तो डेटा रिसीव होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसकी और उसकी कैपेसिटी दोनों अलग है। रिसीविंग कैपेसिटी ऑलवेज वेरी विद द ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। तो अगर ट्रांसमीटर बहुत तेजी से डेटा सेंड करेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट विल हैपन, द डेटा में नॉट रिसीव प्रॉपरली, सो ओवरफ्लो कंडीशन में हैपन, और यू कैन से द फ्लो विल नॉट बी कंट्रोल्ड एट द रिसीवर साइड। क्लियर? फोर्थ वन इज द एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मतलब क्या है, जो ट्रांसमिशन में सोर्स से डेस्टिनेशन पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है मशीन, उसमें क्या होगा, कई बार जब फ्रेम हमारे प्रॉपरली रिसीव नहीं होंगे, देन एरर में हैपन, मींस कोई बिट आपकी लॉस हो गई, कोई फ्रेम आपका ट्रांसमिट हो रहा है, इट कैरीज द ब्लॉक्स ऑफ डेटा और बिट्स ऑफ डेटा, डेटा इन बिट्स फॉर्म, so if any of the bit may get corrupted, so error will happen. Okay? So error control mechanism
is also a design issue in data link layer. Yeah? How we can control that error? Then we have addressing. So on multiple points, such as many machines connected together, so the identity of individual machines must be specified while transmitting the data frame. Yeah. So this is belong to the addressing part. Then we have control and data on the same link. Okay. So the data and control information is exactly connected in a frame and transmitted from the source to the destination machine. Okay. So the destination machine must be able to recognize control information from the data that being transmitted. Then we have link management. Clear? लिंक मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, सब आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। यहाँ पे सभी को दिख रहा है यहाँ पे? Is it clear to all of you? Hello? Is it clear to all of you? Yes, sir. यहाँ आप देख सकते हैं जो अभी मैं जितने भी डिजाइन इशू डिस्कस कर रहा हूँ, दे ऑल आर पॉइंट वाइज मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है। देन लास्ट वन इज द लिंक मैनेजमेंट। लिंक मैनेजमेंट क्या है? द इनिशिएशन, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। पहले इनिशिएट हुआ, उसका मेंटेनेंस एंड देन टर्मिनेशन ऑफ द लिंक बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ डेटा। ठीक है। पहले सेटअप होता है, फिर उसको मेंटेन करना है लिंक को, फिर लास्ट में टर्मिनेट करना है जब सेशन ओवर हो जाएगा। तो फॉर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ डेटा इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो लिंक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। क्लियर? यहाँ तो समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Okay, so now we move to the next portion of this. All of you are requested, kindly mark your attendance. वे लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। क्लियर? ओके। सो फ्लो कंट्रोल में आप लोगों ने काफी चीजें पढ़ी होंगी, लाइक इससे पहले हम लोग वो देख लेते हैं, एरर सॉरी फ्रेमिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है। First of all, we will discuss about the framing, then we will discuss the flow control. Clear? So just wait, I am sharing a file to you all. Just wait. Okay, so now we have available the data. I'm just sharing the file. Okay. Okay, दिख रहा है सभी को? Is it visible? Yes, sir. Okay. So framing की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है। फ्रेमिंग के बाद फ्लो कंट्रोल डिस्कस करेंगे। सो फ्रेमिंग में क्या होता है? फ्रेमिंग में जैसे
हमारे पास एक लॉन्ग या लेंथ का डेटा है, उसको हम ब्रोक कर सकते हैं। डेटा इज ब्रोकन up into discrete frames which can be of fixed length using extra padding bits that is required or variable length. Clear? So the breaking of bit stream by inserting spaces or time gaps is called frame. Frame क्या होता है कि जो भी हमारा स्ट्रीम है उसको हम ब्रेक कर देंगे by inserting some spaces in between them. इसको हम टाइम गैप भी कहते हैं. That is called the frame. Clear? Checksum is calculated from the data in the frame and added to it. ठीक है, checksum कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द डेटा इन द फ्रेम और इसको ऐड करेंगे. ठीक है, so the receiver calculates the checksum and compares it to the sent one. If they are not the same, an error has occurred and the receiver has to deal with it. Clear? उसी से उसको मैच कराएगा checksum के थ्रू. अगर दोनों सेम है तो no issue will be there. Data will be properly received. If any difference may happen, clear, so the data will be lost. Clear? Means error will be there. ये error आपका generate होगा कि error आपकी आ रही है. ठीक है ना? Now various simple methods used for the framing are character count. Clear? Character count, then starting and ending character, इसको with character stuffing भी कहते हैं. ठीक है, then we have starting and ending character with bit stuffing. Clear? So these are methods used for framing. Clear? Now we move to next one, that is character count. ये देख सकते हैं आप. This is the diagram for this. So character count की अगर हम बात करें तो this framing method used as a header field which can be added to the frame which contains the number of characters or bits in the frame. Yeah? तो ये जो framing method है ये header field को यूज करता है जो कि ऐड कर सकते हैं फ्रेम के साथ. ठीक है, which contains the number of characters or bit in the frame, जो ये बताएगा कि कितने कैरेक्टर्स या बिट है फ्रेम के अंदर जो भी हम हेडर लगाएंगे उसके साथ. ठीक है ना? वैसे भी हेडर जनरली क्या करता है, एड्रेस इंफॉर्मेशन कैरी करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन. यहाँ पे बिट काउंट्स को वो होल्ड करेगा. ठीक है, तो दिस नंबर, फर्स्ट नंबर ऑफ ईच फ्रेम helps the receiver to know the number of characters in the frame following this count as shown in figure. ये डायग्राम आप देख सकते हैं. Clear? So this is frame 1, right? This is having 5 characters. Frame 2 is having 5 characters. Frame 3 is having 8 characters. Clear? So जो starting number है that exactly counts the characters. ये देख सकते हैं आप. ये जो 5, ये आपको 5 दिख रहा होगा यहाँ पे जो इंडिकेट किया हुआ है. यहाँ पे ये 5 आपको दिख रहा होगा. ठीक है, तो जो भी फ्रेम का जो फर्स्ट नंबर है वो कैरेक्टर काउंट बता रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हेडर फील्ड. ठीक है, तो जो ये 5 जो पहला नंबर दिख रहा है ये बताएगा कि जो फ्रेम है उसमें कितने कैरेक्टर हैं. तो जो 5 फ्रेम 1 में देखिए 5 कैरेक्टर्स है तो ये फर्स्ट नंबर 5 बता रहा है. सेकंड फ्रेम में, फ्रेम 2 में भी 5 कैरेक्टर है. सेकंड फ्रेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 5 जो पहला वाला बिट्स है वो बता रहा है कितने कैरेक्टर्स है. थर्ड फ्रेम में देखिए 8 कैरेक्टर्स है, पहली वाली बिट आपको बता रही 8 कैरेक्टर्स है. फ्रेम 4 में भी ये आपको 8 कैरेक्टर बता रहा है. उसको समझ में आ रही है चीजें? Yes, sir. हेलो. तो दिस इज द कैरेक्टर काउंट मेथड ऑफ फ्रेमिंग. क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन देखिए. एरर कहाँ पे अकर हुआ, जैसे देखिए अब ये फ्रेम हमारा सेकेंड ये है. सेकेंड में आपको पता है यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, फ्रेम 2 पे 5 आना चाहिए पहला कैरेक्टर, लेकिन यहाँ 7 आ गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ 7 आ गया, इसका मतलब एरर आ गया फ्रेम 2 में. तो फ्रेम 2 आपका रॉन्ग हो गया. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एरर आ गया बिकॉज इट वाज इनिशियली 5. स्टार्टिंग में बिट आपकी 5 थी लेकिन 7 आपको यहाँ पे मिल रहा है. तो नाउ फ्रेम 2 इज लिटिल बिट एरर्ड. क्लियर?
इसमें एरर आ गया। आर यू गेटिंग क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एरर आ गई है, दिस इज द एरर, सो दैट व्हाई इट इज मेंशन्ड विथ वन एरर। क्लियर? So a problem occurs when there is an error in the received count. So the error can change the character count. ठीक है, एरर क्या करेगा, कैरेक्टर काउंट को ही चेंज कर देगा जो भी एरर आ रहा है। So even if the checksum is incorrect, so the destination knows the frame is bad. Clear? If it has no way to know where the next frame start, इसको पता ही नहीं चलेगा कि नेक्स्ट फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बीच में एक बिट करप्ट हो गई। क्लियर? So this method has no way of synchronizing sender and receiver, therefore it is rarely used on itself, but always in combination with the following method. Clear? कैरेक्टर स्टफिंग की बात करें, ठीक है, कैरेक्टर स्टफिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग एंड एंड कैरेक्टर विथ फ्रेम। So the problem of character count method is solved here by using a start character before the starting of each frame and an ending character at the end of each frame. ठीक है, स्टार्ट और एंड, वहां पे केवल स्टार्ट को काउंट कर रहे थे, यहाँ स्टार्ट एंड एंड कैरेक्टर्स दोनों हमारे एसोसिएट होंगे, क्लियर, विद द फ्रेम। सो इन दिस मेथड start and end of the frame is indicated with a special character sequences such as data link escape, end of text, DLE and ETX, and start of text, that is STX. So each frame is preceded by the transmission of ASCII character sequence, that is STX DLE. After each frame, the ASCII character sequence will be DLE and ETX, that is transmitted. So if the receiver loses the synchronization, it just has to search for the STX DLE or DLE ETX. Clear? तो अगर कोई बिट सीक्वेंस लूज भी हो जाता है रिसीविंग पे, तो वो इसको सर्च करेगा, दैट इज STX DLE एंड और DLE ETX कैरेक्टर पे, जिससे वो दोबारा ट्रैक पे आ सके। ठीक है, सीक्वेंस ना गड़बड़ होने पाए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे ये नेम है उमेश, ठीक है, ये डेटा रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम नेटवर्क लेयर एट द सेंटर। क्लियर? सो यहाँ पे देखिए STX DLE स्टार्ट ऑफ लगा दिया, यहाँ एंड ऑफ फ्रेम में DLE ETX लगा दी, बीच में आपका डेटा है। अब कोई बिट अगर बीच में करप्ट हो भी जाती है तो वो इन दोनों से मैच कर लेगा, या तो स्टार्ट ऑफ फ्रेम से या एंड ऑफ फ्रेम से। क्लियर? तो उसको सीक्वेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो सीक्वेंस की एंडिंग ये है और स्टार्टिंग ये है, तो अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत आती है कोई बिट पोजीशन पे तो उसको सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? तो द प्रॉब्लम विद दिस दैट द कैरेक्टर DLE STX और DLE ETX कैन बी द पार्ट ऑफ डेटा एज वेल। बस यही प्रॉब्लम है कि इसको भी एज अ डेटा कंसीडर करेगा ये। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक साथ ट्रांसमिट होगा along with the data, so it will consider that the data. Clear? So मिसइंटरप्रिटेशन हो सकता है रिसीवर को, इज इट डेटा एग्जैक्टली और या फिर स्टार्ट और एंडिंग फ्रेम्स है, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर? नाउ वी हैव कैरेक्टर स्टफिंग मेथड। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो भी स्टार्ट एंड एंडिंग कैरेक्टर फ्रेम की प्रॉब्लम थी विद द फ्रेम, दैट विल बी सॉल्व्ड इनटू द कैरेक्टर स्टफिंग। कैरेक्टर स्टफिंग में क्या है, इसमें हम the data link escape, that is DLE stuffed in front of that control character when appear as a part of data. Yeah, so the data link layer at the sending end insert a DLE character just before each accidental DLE character in the data. So the data link layer at the receiving end will remove these DLE characters before handing over data link layer to the network layer. Thus, the framing DLE, STX or DLE ETX can be distinguished from the one in data
because DLEs in the data is always doubled. Okay? इसको कैरेक्टर स्टफिंग कहते हैं। इसका भी देख सकते हैं हम लोगों ने इसको DLE से एक्सचेंज किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए DLE STX A, then DLE B, then DLE ETX. This is start, this is end. Clear? ठीक है? So this is the stuffed DLE. This is the stuffed DLE. Clear? So the data sent by the network layer. This is the first one that जो network layer ने data send किया है इस form में। B1 B वाला आपका क्या है? Data after being character stuffed by the data link layer. ठीक है? ये कैरेक्टर स्टफिंग के बाद आपका डेटा है, दैट इज DLE स्टफ्ड। क्लियर? यहाँ पे देखिए जो आपका DLE A B के साथ एक DLE था, वहां पे एक कैरेक्टर स्टफ्ड किया गया, दैट इज DLE। फिर डेटा पास टू द नेटवर्क लेयर ऑन द रिसीविंग साइड। अब ये हमारा डेटा नेटवर्क लेयर पे रिसीविंग साइड पे मिल रहा है, दैट इज A B DLE UTX। क्लियर? इसके साथ भी मेन प्रॉब्लम इज द फ्रेमिंग मेथड इज दैट वी हैव टू यूज द 8-bit कैरेक्टर्स एंड ASCII कोड्स and it will be overcome by using the bit stuffing। clear? तो मेन प्रॉब्लम इसमें यही है कि we have to use the 8-bit characters and ASCII codes। clear? This is the main issue with this, we are using the 8-bit characters and stuffing codes। all the students are requested kindly mark your attendance this chat box। सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा। ठीक है? Then we have bit stuffing method। A generalization of this, not connected anymore to ASCII characters, that is bit flagging and stuffing as shown you here। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग ASCII कैरेक्टर को ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है? यूजिंग बिट फ्लैगिंग एंड स्टफिंग। सो ईच फ्रेम, जो भी फ्रेम होगा, दैट बिगिंस एंड एंड विथ ए स्पेशल पैटर्न ऑफ 8 बिट्स। इसको हम फ्लैग बाइट भी बोलते हैं। ये देख सकते हैं 8 बिट के स्पेशल पैटर्न से स्टार्ट होगा। ठीक है? जो भी फ्रेम होगा, whenever the sender sees 5 consecutive ones in the data। ठीक है? जब भी सेंडर देखेगा 5 consecutive ones in the data, it automatically stuffs a 0 bit into the stream। ठीक है? When the receiver sees 5 ones followed by a 0, it deletes the 0। The bit handling is done in hardware, so it can be very fast। Exactly क्या हो रहा है? ये देखिए, जैसे ये ओरिजिनल डेटा था मेरा, दिस वाज द ओरिजिनल डेटा। इसने क्या किया? स्टार्टिंग फ्लैग बाइट इसमें ऐड कर दिया। जैसे ये देखा इसने, ये 8 बिट का सीक्वेंस इसमें एसोसिएट किया इस डेटा के साथ। ठीक है? क्लियर? स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। ठीक है? और इसने देखा 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस आ रहे हैं जो इसमें ऐड किया है। देखिए 1 1 1 1 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस है। ठीक है? दैट फॉलोड बाय अ 0, एक 0 के साथ फॉलो हो रहा है। ठीक है? तो रिसीवर पे जब ये जाएगा तो रिसीवर पे ये 0 को हटा देगा। रिसीवर साइड पे क्या करेगा? रिसीवर पे इस 0 को ये हटा देगा। ठीक है? तो आप देख सकते हैं रिसीवर पे क्या किया इसने, ये जो एंड फ्लैग है पहले ये रिसीव होगा। ठीक है? तो जैसे उसने 0 को हटा दिया। ठीक है? जो हमारा डेटा है, ये देखिए रिसीव हो गया, दैट इज 0 1 0 0 1 1 1 1। ठीक है? अब यहाँ पे स्टफिंग हो रही है। स्टफिंग बिट्स कहाँ पे है? ये भी जो 0 0 है, ये 0 और ये 0। ठीक है? these are the stuffed bits। ठीक है? these are the stuffed bits। तो जैसे देखिए यहाँ पे जितने भी 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस हैं, जैसे ये डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा था, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव वन है, तो इसके आगे एक 0 यहाँ पे ऐड कर देगा।
इसी को हम स्टफ्ड बिट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे 0 ऐड हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ के बाद फिर 5 कॉन्टिक्यूटिव 1 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ तक मिले। फिर इसके आगे यहाँ पे एक 0 ऐड कर देगा, तो देखिए यहाँ एक 0 ऐड कर दिया। ये डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है। अब रिसीवर को पता है ये चीज कि जहाँ हमारा कि जहाँ पे 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 से वहां एक 0 ऐड किया गया है, तो रिसीवर पे क्या करेगा, इसको हटा देगा। देखिए जो भी जीरोज हैं ये वहां से हटा देगा। इसको पता है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 के बाद 0 ऐड किया गया स्टफ्ड बिट में, तो इसने हटा दिया और इसको ओरिजिनल डेटा रिसीव हो गया। जब ये 0 0 हट गया, देन ओरिजिनल डेटा इज रिसीव आफ्टर डी स्टफिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? यस इसको हम लोग बिट स्टफिंग कहते हैं, ठीक है। बिट स्टफिंग, तो ये थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है कि जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 आ रहे हैं तो उसके बाद ये 0 इंसर्ट करेगा वो। एंड रिसीवर विल नो दिस कि that the stuffed bits are added after the 5 consecutive ones, clear? So it will just remove that particular bit and receive the original data, clear? So इसको de-stuffing कहते हैं। Then we have error control, clear? So if we talk about the error control, typically the receiver send a special control frame with positive or negative acknowledgement, clear? जो रिसीवर होता है स्पेशल कंट्रोल फ्रेम को ट्रांसमिट करता है, रिसीव सेंड द स्पेशल कंट्रोल फ्रेम विथ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आफ्टर द इनकमिंग फ्रेम। सभी को पता है अगर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट जा रहा है तो इसका मतलब फ्रेम इज प्रॉपर्ली रिसीव्ड, अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई एरर आ रही, ठीक है। इट मींस रिसीवर हैज रिसीव्ड द फ्रेम बट फाउंड एन एरर इन इट, क्लियर? तो सेंडर या तो उसको अगेन सेंड करेगा या वो डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। So it is possible that a sent frame or its acknowledgement is completely lost due to a noisy burst, clear? So to avoid waiting forever, the sender start a timer, ठीक है। तो सेंडर ऐसा तो है नहीं कि उसका वेट ही करता रहेगा, सेंडर क्या करता है, हमेशा वेट करने के बजाय ऐसे वेट करता ही रहे जब तक वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है, तो वो एक टाइमर स्टार्ट करता है जब भी वो फ्रेम को सेंड करेगा। When no acknowledgement arrives before the timer goes off, ठीक है। अगर टाइमर के ऑफ होने से पहले एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, where if suppose it not receive the acknowledgement before the timer gets off, ठीक है। So वो क्या करेगा, the sender usually transmit the frame again, but फ्रेम को ट्रांसमिट कर देगा अगर उसको कोई एक्नॉलेजमेंट विद इन टाइम नहीं मिला। In that case the receiver might receive frame twice, ऐसा हो सकता है ना कि रिसीवर को थोड़ा डिले हो गया हो तो रिसीवर को तो वही फ्रेम 2 बार रिसीव हो जाएगा, हो सकता है नहीं हो सकता है, बताइए। सिद्धांत, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। तो अगर टाइमर आपका जो है टाइमिंग में अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो दोबारा उसी फ्रेम को सेंड कर देगा, तो रिसीवर को ऐसा लगेगा कि दोबारा वही फ्रेम रिसीव हो गया, पाएगा वो दोबारा उसी फ्रेम को पाएगा, ठीक है। तो 2 बार उसको रिसीव हो जाएगा। सो टू प्रिवेंट दैट इट इज नेसेसरी to assign sequence number to outgoing frame। ये चीज अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस नंबर उसको अलॉट करते हैं फ्रेम को, सो दैट द रिसीवर कैन डिस्टिंग्विश रीट्रांसमिशन फ्रॉम ओरिजिनल, ठीक है। जिससे रिसीवर डिस्टिंग्विश कर सके, उसको दोबारा रिट्रांसमिट ना करना पड़े, पता चला उसी फ्रेम को दोबारा फिर रिट्रांसमिट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म में। तो उसमें एक सीक्वेंस नंबरिंग ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए इसको 2 बार रिसीव भी हो गया तो उसका एक्नॉलेजमेंट अगर एक बार भेज चुका है तो दोबारा नहीं भेजेगा, क्योंकि सक्सेसफुली अगर एक्नॉलेजमेंट जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फ्लो कंट्रोल की, ठीक है। अब हम लोग फ्लो कंट्रोल पे आएंगे। तो फ्लो कंट्रोल एग्जैक्टली है क्या? व्हेन द सेंडर इज रनिंग ऑन ए फास्ट मशीन और ए लाइटली लोडेड मशीन,
ठीक है, एंड रिसीवर इज ऑन स्लो और हैवीली लोडेड मशीन, मतलब सेंडर तो फास्ट है लेकिन रिसीवर स्लो है, देन द ट्रांसमीटर विल ट्रांसमिट फ्रेम्स फास्टर देन द रिसीवर कैन एक्सेप्ट देम। ठीक है, ट्रांसमीटर तो बहुत तेज ट्रांसमिट करेगा, but receiver is little bit slow to receive that. Even if the transmission is error free, at a certain point the receiver will simply not be able to handle the frame as they arrive and will start to lose some. To prevent this, flow control mechanism that is incorporated with include a feedback mechanism at requesting transmitter and retransmission of incorrect message block. Clear? So now अब हम लोग इसमें मैं वही फाइल आपको दोबारा शेयर कर रहा हूँ जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्लो कंट्रोल में। Okay, so now we are moving to the flow control. Yeah, so flow control हमने जैसा कि आपको बताया कि फ्लो कंट्रोल एग्जैक्टली इस क्या डील करेगा कि कैसे हम फ्लो को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसमें कई सारे मेथड है, जैसे आपको एक दिख रहा होगा स्टॉप एंड वेट, स्लाइडिंग विंडो, क्लियर, सेलेक्टिव ARQ, ये सारे मेथड हैं। ये देख सकते हैं जो भी पैकेट नेटवर्क लेयर से आ रहा है, दिस पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, ठीक, तो रिसीवर टिपिकली हैव ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ मेमोरी, इसको हम बफर स्पेस भी कहते हैं, टू स्टोर द रिसीव्ड डेटा बिफोर प्रोसेसिंग। ऐसा नहीं रिसीवर के बहुत ज्यादा मेमोरी है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ मेमोरी है। ठीक है, सो पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इज कमिंग एंड इट इज जस्ट स्टोर्ड इन क्यू फॉर्म, इसको स्टेप बाय स्टेप स्टोर कर रहा है। So memory buffer to store the frame before they are transmitted over link. Yeah. Process the frame and transmit it. Clear? So यहाँ से फ्रेम आपका ट्रांसमिट हो रहा है, क्लियर, यहाँ पे रिसीव हुआ, ठीक। सो ये देख सकते हैं मेमोरी बफर टू स्टोर द फ्रेम बिफोर दे प्रोसेस एंड सेंड टू द नेटवर्क लेयर। क्लियर, सो यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, तो इस जैसे जिस फॉर्म में आप ट्रांसमिट करेंगे उसी फॉर्म में यहाँ रिसीव होगा स्टेप बाय स्टेप। क्लियर, अगर मान लीजिए फ्लो बहुत फास्ट है तो फिर दिक्कत आएगी। क्लियर, सो flow control basically aims to ensure sending entity does not overwhelm receiving entity. So if sender sends too faster for receiver, then buffer may overflow. रिजल्ट ऑफ बफर ओवरफ्लो का रिजल्ट क्या होगा कि डेटा लॉस्ट हो जाएगा, पॉसिबली नीड टू रीट्रांसमिट, विच रिड्यूसेस परफॉर्मेंस, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को भी रिड्यूस करेगा। सो फ्लो कंट्रोल ट्राइज टू प्रिवेंट बफर ओवरफ्लो। ठीक है, जो फ्लो कंट्रोल है वो बफर ओवरफ्लो को रिड्यूस करता है। फ्लो कंट्रोल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रांसमिशन टाइम एंड प्रोपगेशन टाइम। इफ यू assume that there is no error but varying delay, yeah, so flow control exactly used at the data link layer to control the sending of the data over a link, but it is also used at other layers, especially transport layer, to control sending of data over a network. Similar concept and protocol are used, mechanism are used. So it might be the session is going to over, so you are requested kindly join again. Clear? The session will just terminate within 1 minute. So ये देख सकते हैं, this is error free frame transmission. All of you are listening to me?